ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਥਲੀ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਭਵਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਹਤਾਂਗ ਟਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਟਲ ਟਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਿਊਜ਼ 27 28 ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਾਂਗ ਟਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਟਲ ਟਨਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 8.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੈ ਇਹ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰੋਡ ਟਨਲ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰੋਡ ਟਨਲ ਹੈ। 3000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਹੈ, 3000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰੋਡ ਟਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ CNG ਬੱਸ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ CNG ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ CNG ਬੱਸ। ਅੱਛਾ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ? ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਔਰ ਸਟੀਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੇ ਸਟੀਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਰਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਸਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ CRPF ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, MANI ਮੋਬਾਈਲ ਏਡਡ ਨੋਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ RBI ਦੁਆਰਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਚੈਲੰਜ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 139 ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫॉर ਹੈਲਪ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਨੇਪਾਲ ਈਅਰ 2020 ਕੈਂਪੇਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ?
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੱਥੇ? ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਾਲਡ ਅਡੋਪਟ ਅ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਆਪਣੀ ਧਰੋਹਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਆਪਣੀ ਧਰੋਹਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਦਾਮੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਦਾਮੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਡੋਪਟ ਅ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਆਪਣੀ ਧਰੋਹਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਪ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਪ ਆਈਸਟੈਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, MOS ਫॉर ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ। ਕੌਣ ਨੇ? ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 4th ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਜੂਡੋ ਕਲਸਟਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਚੌਥੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਜੂਡੋ ਕਲਸਟਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 5ਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰਟਲ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਟਰਟਲ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰਟਲ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਗਲਪੁਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਗਲਪੁਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰਟਲ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਕੰਨਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਥਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਕੰਨਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਥਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗੀ MP ਪੁਲਿਸ। MP ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ E-COP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, MP ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ E-COP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ E-ਸਿਗਰੇਟਸ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨੋਗਰੇਟ 5 ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਬ। 5 ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਬਸ DRDO ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। DRDO ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 1958 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ DRDO। ਜਿਹੜੀ 5 ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਬੈਂਗਲੋਰ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, हैदराबाद, कोलकाता। बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सैकेंड टॉलेस्ट स्टैचू रिवील किया गया। कित्थे किया गया? अहमदाबाद दे विच, गुजरात के अहमदाबाद दे विच यह किया गया। उत्थे दे चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी द्वारा, विजय रूपाणी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने द्वारा गुजरात के अहमदाबाद के वर्ल्ड सैकेंड टॉलेस्ट स्टैचू किन्ना दा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, याद रखना किन्ने मीटर का? 50 मीटर का। हाइट याद रखनी किसका बनया हुआ? ब्रोंज का। ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, जो सब तो टॉलेस्ट है वो किन्ने का? वो है 182 मीटर्स। किन्ने मीटर्स? 182 मीटर्स। ठीक है, उसके बारे में एक न्यूज़ सी वो भी याद रखनी है। इसनों SCO के 8 वंडर्स की लिस्ट के शामिल किया गया। SCO के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर्स की लिस्ट के शामिल किया गया सी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जोड़ा टॉलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है गुजरात विल सैटअप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट चिल्ड्रनस इनोवेशन। चिल्ड्रनस की इनोवेशन नू प्रमोट करने के लिए ते लभन के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए यह किया गया। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर नू लॉन्च किया गया गुजरात गवर्नमेंट द्वारा।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ 31st ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਈਟ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 31st ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਈਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਅ ਸਾਈਬਰ ਸੇਫ ਵੂਮਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਸਾਈਬਰ ਸੇਫ ਵੂਮਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਵੇਵਰ ਸਕੀਮ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਵੇਵਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਯੂਪੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਬਿਕਮ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਟੂ ਪਾਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ CAA। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਬਣੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਬਣੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਥਰਡ ਬਣੀ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਫੋਰਥ ਬਣੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸਟੇਟਸ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸਟ ਕੇਰਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਜਾਬ, ਥਰਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਫੋਰਥ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ CAA। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸਰੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫॉर ਸਮਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ। ਸਮਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਤੁਥੂਕੁੜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਥੂਕੁੜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਫॉर ਸਮਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਕਿਸ ਦਾ ਦੁਆਰਾ? ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇ ਸਿਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਵਰ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NSE ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ MP ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ, ਕਰਮ ਯੋਧਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਰਮ ਯੋਧ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ, NDRF ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NDRF ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ, HRD ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ? HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਰੀਦਵਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 28th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਐਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 28th ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਲ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੂੰ ਚਨਾਬ ਬ੍ਰਿਜ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਨਾਬ ਬ੍ਰਿਜ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਚਨਾਬ ਬ੍ਰਿਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, I4C ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, I4C ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ GSAT-30 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ GSAT-30 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਏਰੀਆਨ 5 ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਏਰੀਆਨ 5 ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੀਨੀਆ। ਏਰੀਆਨ 5 ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੀਨੀਆ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GSAT-30 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
एम वेंकैया नायडू, वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इनोग्रेट किया सी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ किहड़ी लैंग्वेज के लिए? तेलुगु लैंग्वेज। इंपोर्टेंट की है, लैंग्वेज भी याद रखनी है, प्लेस याद रखनी है, निलोर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के निलोर दे विच किया गया सी तेलुगु लैंग्वेज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किन्ना द्वारा? एम वेंकैया नायडू द्वारा। नैक्सट है इंडियाज़ फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट। साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट अश्वस्थ, अश्वस्थ नाम की साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट कित्थे लॉन्च की गई है? गुजरात दे विच। गुजरात दे विच लॉन्च की गई है साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट अश्वस्थ। नैक्सट है महाराष्ट्र गवर्नर। महाराष्ट्र गवर्नर कौन ने? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्होंने इनोग्रेट किया उत्तराखंड भवन, कित्थे? नवी मुंबई दे विच। नवी मुंबई दे विच उत्तराखंड भवन नूं इनोग्रेट किया गया। इस तो इलावा याद रखना जी.सी. मुर्मू। जी.सी. मुर्मू गवर्नर ने जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ने, उन्होंने किया सी की किया सी अनाउंस किया सी कि जम्मू एंड कश्मीर भवन बनाया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर भवन बनाया जाएगा कित्थे? मुंबई दे विच। ये भी याद रखना है। नैक्सट है ब्राज़ील हैज़ अनाउंसड दैट इट विल ओपन अ न्यू रिसर्च बेस इन एंटार्टिका। एंटार्टिका दे विच न्यू रिसर्च बेस बनाएगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील कित्थे रिसर्च बेस बनाएगा? एंटार्टिका दे विच। एंटार्टिका दे विच इंडिया के किन्ने बेस ने? 3 बेस ने एंटार्टिका के। ठीक है, तुसीं उन्हां दे नाम मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसने ने। अपनी जिहड़ी डेली करंट अफेयर्स की क्लास हुंदी है उस दे विच मैंने ये तीनों नाम दसे हुए हैं। नैक्सट है अ बुक नेम विनिंग सिक्सर। विनिंग सिक्सर नाम की बुक है, किन्हां द्वारा लिखी गई है? W.V. रमन। W.V. रमन द्वारा विनिंग सिक्सर नाम की बुक लिखी गई है। W.V. रमन कौन ने? W.V. रमन एक तो फॉर्मर क्रिकेटर ने, तो इस टाइम ये वूमेन टीम के कोच ने, वूमेन क्रिकेट टीम के कोच ने W.V. रमन। ये भी याद रखने ने। नैक्सट है एक बुक है ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पज इन परपीट्यूटी। ह्यूमन डिग्निटी यह बुक रिलीज़ की गई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सरदार श्री मनमोहन सिंह इन्हों द्वारा यह बुक नूं लॉन्च किया गया। ठीक है, रिलीज़ की गई है। तो ऑथर कौन ने इस बुक के? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार द्वारा यह बुक लिखी गई है। ठीक है जी। नैक्सट है NIC नैशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। एक ही सैटअप करेगा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सैटअप करेगा ब्लॉकचेन टैक्नोलॉजी दे विच। ब्लॉकचेन टैक्नोलॉजी दे विच एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सैटअप करेगा कित्थे? बेंगलुरु दे विच। बेंगलुरु दे विच सैटअप करेगा NIC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टैक्नोलॉजी। नैक्सट है DV सर्वानंद गौड़ा। DV सर्वानंद गौड़ा किहड़ी मिनिस्ट्री इन्हां लवे? कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री। कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री बेंगलोर कर्नाटका। बेंगलोर कर्नाटका तो लोक सभा MP ने DV सर्वानंद गौड़ा। ठीक है, इन्होंने एक लोगो तो एक ब्रांड लॉन्च किया है, तो उसका लोगो भी लॉन्च किया है। की नाम है ब्रांड का? अपना यूरिया सोना उगले। अपना यूरिया सोना उगले किसका? हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का ब्रांड लॉन्च किया है DV सर्वानंद गौड़ा ने। कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने बेंगलोर कर्नाटका तो लोक सभा MP ने। नैक्सट है किरण बेदी। किरण बेदी की ने? लैफ्टीनेंट गवर्नर ने पुडुचेरी के गवर्नर ने किरण बेदी। इन्होंने इनोग्रेट किया 12th नैशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। 12th नैशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम नूं लॉन्च किया पुडुचेरी दे विच। ठीक है, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर का नाम तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में दसना है। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर का नाम की है? ठीक है। नैक्सट है रविशंकर प्रसाद। इस टाइम रविशंकर प्रसाद की ने? रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने, कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने और थर्ड IT मिनिस्टर ने। रविशंकर प्रसाद पटना बिहार तो लोक सभा MP ने। इन्होंने इनोग्रेट किया सैकेंड एडिशन ऑफ NIC टैक कॉन्कलेव। NIC टैक कॉन्कलेव 2020 कित्थे? न्यू दिल्ली दे विच। एज ए IT मिनिस्टर इन्होंने यह इनोग्रेट किया। नैक्सट है उत्तर प्रदेश UP स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जी कि मैं अपने हुणे डिस्कस की थी कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट की है? UP की है। नैक्सट है S जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर कित्थों लोक सभा MP ने? यह राज्यसभा MP ने, सॉरी यह राज्यसभा MP ने गुजरात तो राज्यसभा MP ने सुब्रमण्यम जयशंकर। और इन्हों के नाल प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीर के प्रेसिडेंट ने महामोदन इसोफोर।
महामोदन इसोफो इन्हां दोनों ने मिल के इनोग्रेट किया सी फर्स्ट गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नूं इनोग्रेट किया सी कित्थे नाइजीर दे विच। नाइजीर दे विच इसनूं इनोग्रेट किया गया सी। नैक्सट है उड़ीसा महोत्सव। उड़ीसा महोत्सव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंडर उड़ीसा महोत्सव मनाया गया कित्थे गुजरात दे विच। गुजरात दे विच मनाया गया उड़ीसा महोत्सव। वूमेन विद व्हील्स। वूमेन विद व्हील्स टैक्सी सर्विस में लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उत्ते कित्थे है न्यू दिल्ली दे विच। वूमेन विद व्हील्स इस दे अंडर की सीगा आपां डिस्कस किया सी कि इस दे अंडर एक तो वूमेन जिहड़े पैसेंजर्स होणगे वो भी वूमेन होणगे और जिहड़े ड्राइवर्स होणगे वो भी वूमेनस होणगे। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली दे विच। नैक्सट है फर्स्ट ई वेस्ट क्लीनिक इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लीनिक कित्थे ओपन किया गया भोपाल मध्य प्रदेश के विच। मध्य प्रदेश के भोपाल दे विच किया गया सी फर्स्ट ई वेस्ट क्लीनिक। ठीक है, मध्य प्रदेश CM कमलनाथ, ये भी याद रखने ने। नैक्सट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सिस्टम लॉन्च किया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड पेमेंट सिस्टम वज्र किस नाम का वज्र नाम का एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक है, नैक्सट है हिंदी नॉवल बलवा। बलवा नाम का एक हिंदी नॉवल रिलीज़ किया गया माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन ने? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। राज्यसभा MP ने झारखंड तो, राज्यसभा MP झारखंड तो ने मुख्तार अब्बास नकवी नॉवल रिलीज़ किया बलवा। नैक्सट है पाकिस्तान ने एक सक्सैसफुल लॉन्च किया सी सरफेस टू सरफेस न्यूक्लीयर कैपेबल मिसाइल का। सरफेस टू सरफेस न्यूक्लीयर कैपेबल मिसाइल का लॉन्च किया सी गजनवी। गजनवी नाम की एक सरफेस टू सरफेस न्यूक्लीयर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया पाकिस्तान ने। नैक्सट है ब्रिटेन द्वारा एक 50 पेंस कॉइन 50 पेंस का एक कॉइन रिलीज़ किया गया किस दे द्वारा? ब्रिटेन द्वारा। किस दे लई? ब्रिटेन एग्जिट नूं दी मैमरी दे विच, यानी कि रिमार्केबल करने के लिए 31 जनवरी वाले दिन ब्रिटेन ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन तो। ठीक है, कॉइन के उत्ते की लिखा हुआ? पीस प्रोस्पैरिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस। पीस प्रोस्पैरिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस। नैक्सट है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने कमीशन की है कंट्री दी फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। कंट्री दी फर्स्ट सरकारी वेस्ट तो एनर्जी बनाने वाला प्लांट भुवनेश्वर उड़ीसा दे विच। उड़ीसा के भुवनेश्वर दे विच किन्ना द्वारा कमीशन किया गया? इंपोर्टेंट ये भी बनता है भी किन्ना द्वारा इसनूं कमीशन किया गया? इंडियन रेलवेज द्वारा। इंडियन रेलवेज द्वारा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन ने? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रिसेंटली उन्होंने टर्म नूं एक्सटेंड किया गया सी। रिसेंटली उन्होंने टर्म नूं एक्सटेंड किया गया सी। उन्होंने नाम तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना। नैक्सट है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट ने लॉन्च किया वर्चुअल पुलिस स्टेशन। उड़ीसा स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया वर्चुअल पुलिस स्टेशन। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, याद रखने ने चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। नैक्सट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सैटअप अ वार मेमोरियल। वॉर मेमोरियल सैटअप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कित्थे? उत्तर प्रदेश दे विच। सॉरी वॉर मेमोरियल नहीं, एनीमल वॉर मेमोरियल। एनीमल वॉर मेमोरियल किया उत्तर प्रदेश दे विच। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड किया एनीमल वॉर मेमोरियल उत्तर प्रदेश दे विच। जितेंद्र सिंह ने मिनिस्टर ऑफ डोनर मिनिस्ट्री इन्हां लवे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने इन्होंने लॉन्च किया भुवन पंचायत 3.0 पोर्टल। भुवन पंचायत 3.0 पोर्टल नूं लॉन्च किया बेंगलुरु दे विच। ठीक है, डेवलप किया गया है इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसनूं डेवलप किया गया। बेंगलुरु कर्नाटका दे विच इसनूं लॉन्च किया गया। ठीक है, ये याद रखने। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट मिसलेनियस इवेंट्स। इंपोर्टेंट मिसलेनियस इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। आरपीएन सिंह ने एक बुक लॉन्च की है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बुक जी लॉन्च की है आरपीएन सिंह द्वारा। MiG-27 एक इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है, इसनूं डीकमीशन किया गया इंडियन एयरफोर्स तो। रफाल वर्गे एक मोडिफाइड जैट्स आने कारण MiG-27 नूं डीकमीशन कर दिता गया। ठीक है, नैक्सट है विकास सबनिस जिहड़े कि एक पोलीटिकल कार्टूनिस्ट सीगे, उन्हां दी डेथ हो गई है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 69 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦ ਰੈਨੀਅੰਸ ਮੈਨ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ? ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦ ਰੈਨੀਅੰਸ ਮੈਨ, ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਕੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਫਾइनेंस मिनिस्टर ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾइनेंस मिनिस्टर ਕੌਣ ਨੇ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਬੋਟ ਨੇਮਡ ਸੁਰੇਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਡੈਟ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸਪੀਕ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਟ 100 ਲੈਂਗੁਏजेस। ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਰੇਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 100 ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2020 is a target of government for villages to have free Wi-Fi services। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਲੇजेस ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ 2020 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਲਪ ਵਰਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ 2020 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਲਪ ਵਰਸ਼ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2020 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਗੇ ਕੌਣ? ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਿੰਗਲ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਬਾਈ ਵੂਮੈਨ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਡੇਜ਼। ਸਿੰਗਲ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਬਾਈ ਵੂਮੈਨ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਪੇਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਡੀ ਵਿਟਸਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 288 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 300+ ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? 14 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਲ ਮਕਈ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਮੂਵੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਾਈ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਲ ਮਕਈ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂਵੀ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲ ਮਕਈ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਗੁਲ ਮਕਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ UAE हैज़ अप्रूव्ड द इंश्योरेंस ऑफ 5-year मल्टी कंट्री टूरिस्ट वीज़ा फॉर ऑल नेशंस। UAE द्वारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस कंट्री द्वारा की किया गया 5 साल का मल्टी कंट्री टूरिस्ट वीज़ा दिता गया सारे नेशनस दे विच जाण दे लई। ठीक है, नैक्सट है 2 इंडियन बैंक्स एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ठीक है, इन्होंने अपने ऑपरेशनस नूं एंड किया श्रीलंका दे विच। श्रीलंका दे विच इन्हां दी जिहड़ी ब्रांचिस ने इन्हां नूं बंद करनगे। किहड़े बैंक? एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। नैक्सट है PN हून की ने फॉर्मर कमांडर ने आर्मी दी वैसटर्न कमांड के फॉर्मर कमांडर ने इन्हां दी डैथ हो गई सी। ठीक है, PN हून याद रखना है, नाम इंपोर्टेंट है। PN हून फॉर्मर कमांडर ऑफ आर्मीज वैसटर्न कमांड। नैक्सट है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने की कहा कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाएंगे। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कित्थे बनाएंगे? चलाकारे कित्थे है? चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट दे विच है। ये कित्थे है? कर्नाटका दा चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट दे विच चलाकारे प्लेस है एक, उत्थे बनाएंगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ठीक है, नैक्सट है स्पेस फोर्स नाम की एक न्यू मिलिट्री सर्विस स्टार्ट की गई है USA द्वारा स्पेस फोर्स नाम की एक न्यू मिलिट्री सर्विसिज लॉन्च की गई है। अच्छा, USA नाल इंडिया की कितनी एक्सरसाइज ने इस टाइम? USA की इंडिया के नाल किहड़ी एक्सरसाइज है तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना है। ठीक है, टाइगर ट्रंप, ठीक है, कोप इंडिया, ये सारी इन्हां दे नाम तुसीं मैनूं दसने ने और हो सके तो इन्हां दे वेन्यू भी दसने ने कि किहड़ी कित्थे हैल्ड की गई सी। ठीक है, किहड़ी कित्थे हैल्ड की गई सी। नैक्सट है मलवाथ पूर्णा ने एंटार्टिका की हाईएस्ट पीक माउंट विंसन नूं स्केल किया है मलवाथ पूर्णा ने। इस तो इलावा
इन्होंने फस्ट यानी कि यंगेस्ट बने सी ये माउंट एवरेस्ट ਨੂੰ स्केल करने वाली यंगेस्ट वूमन बनी सी मलवात पूर्णा। नैक्सट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया विल बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया बन जाएगी 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ? ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਡੈਡਲਾਈਨ ਫॉर ਲਿੰਕਿੰਗ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ। ठीक है, मार्च 2020 तक ये एक्सटेंड कर दी गई सी। नैक्सट है गवर्नमेंट अप्रूव्स 5,559 करोड़ 5,559 करोड़ प्रोजैक्ट अमाउंट अप्रूव किया किस दे लई? नॉर्थ ईस्ट नैचुरल गैस ग्रिड प्रोजैक्ट लई। नॉर्थ ईस्ट नैचुरल गैस ग्रिड प्रोजैक्ट के लिए अमाउंट की सी अप्रूव की सी, जिस दे विच सिक्किम और 7 सिस्टर स्टेट दे नूं विच यह बनाया जाएगा। ठीक है, सिक्किम और 7 सिस्टर स्टेट्स किहड़ी ने? 7 सिस्टर स्टेट्स। 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में दसने ने। ठीक है, जिहड़ी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेटां ने वो 7 सिस्टर स्टेट्स ने, उन्होंने नाम तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में दसने ने। हो सके तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स भी। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर कौन अच्छे तरीके नाल देगा। एक डिटेल्ड आंसर देना है। 7 सिस्टर स्टेट्स, उन्होंने चीफ मिनिस्टर और उन्होंने गवर्नर्स। नैक्सट है कश्मीर विल बी कनैक्टेड टू रैसट ऑफ द कंट्री। कश्मीर नूं रैसट ऑफ द कंट्री नाल कनैक्ट किया जाएगा रेलवे नैटवर्क के नाल। कदों तक? दिसंबर 2021 तक। दिसंबर 2021 तक कश्मीर नूं कनैक्ट किया जाएगा रैसट ऑफ द कंट्री के नाल। यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया 1 फरवरी नूं। 1 फरवरी नूं यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया। ठीक है, यानी कि कल इसनूं प्रेजेंट किया गया। इस बारे जिन्ने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने वो आप मंडे या ट्यूसडे की जी अपनी क्लास होएगी उस आप डिस्कस करांगे पूरे डिटेल दे विच। नैक्सट है इंडिया बनी है गैस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट पैरिस बुक फेयर। पैरिस बुक फेयर 2020 दे विच इंडिया है जी गैस्ट ऑफ ऑनर कंट्री रही सी पैरिस बुक फेयर दे विच। नैक्सट है सेंसस जिहड़े सेंसस कंडक्ट किए जाएंगे 1 अप्रैल 2020 तो 1 अप्रैल 2020 तो सेंसस कंडक्ट किए जाएंगे जिहड़े कि पेन पेपर सिस्टम नूं रिप्लेस करके एक पार्टिकुलरली डिजिटली बेसिस दे नाल सेंसस कंडक्ट किए जाएंगे। किन्ने लैंग्वेजिस दे विच? 16 लैंग्वेजिस दे विच। 16 लैंग्वेजिस दे विच इसनूं कंडक्ट किया जाएगा। नैक्सट है अंबाला सिटी बस स्टैंड। अंबाला दा सिटी बस स्टैंड है जिहड़ा कित्थे है? हरियाणा दे विच। उसका नाम चेंज किया गया सुषमा स्वराज जी के नाम के उत्ते। सुषमा स्वराज जी के नाम के उत्ते उसका नाम चेंज किया गया। ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि सुषमा स्वराज जी को की दिता गया? पद्म विभूषण। इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिता गया पद्म विभूषण सुषमा स्वराज जी को। नैक्सट है रिलायंस जियो एक टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है। ये फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बनी है टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ यूपीआई पेमेंट्स की सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी बनी है रिलायंस जियो। नैक्सट है अपाचे एंड चिनूक। अपाचे और चिनूक नाम के हैलीकॉप्टर फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे परेड के पार्टिसिपेट करनगे। फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे परेड के पार्टिसिपेट करनगे अपाचे ते चिनूक नाम के हैलीकॉप्टर्स। ठीक है, इस तो इलावा एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट मिसाइल है, इस इन्होंने भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे की परेड के। तानिया शेरगिल का नाम याद रखना। फर्स्ट वूमेन परेड एडजुटेंट बन गए रिपब्लिक डे की परेड के 2020 की। 2 शिप्स नेम्ड एनी बेसेंट एंड अमृत कौर। एनी बेसेंट और अमृत कौर 2 शिप्स को कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के इन्होंने कमीशन किया गया। ठीक है, किन्ना द्वारा? डिफेंस सैकटरी अजय कुमार द्वारा। अजय कुमार ने डिफेंस सैकटरी एट कोलकाता कित्थे किया गया? कोलकाता किया गया। ये याद रखना है, कोलकाता किया गया, जिस एनी बेसेंट चेन्नई के और अमृत कौर हल्दिया के की कितने जाएंगे? प्लेस किए जाएंगे। लैफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू जोड़ा कि आप डिस्कस कर चुके हैं कि GC मुर्मू ने की किया सी? अप्रूवल दिता सी कंस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भवन एट मुंबई। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है शिव भोजन स्कीम। शिव भोजन स्कीम कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र द्वारा।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ 2024 ਤੱਕ। ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2024 ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਸੈਂਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਲਾਕਾੜੂ ਮੁੰਦਨਥੁਰਾਈ ਟਾਈਗਰ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਕਲਾਕਾੜੂ ਮੁੰਦਨਥੁਰਾਈ ਟਾਈਗਰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਲਾਕਾੜੂ ਮੁੰਦਨਥੁਰਾਈ ਟਾਈਗਰ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਕਾੜੂ ਮੁੰਦਨਥੁਰਾਈ ਟਾਈਗਰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਆਫਰ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक वीज़ा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी साउथ अफ्रीका। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है IUCN रेड लिस्टिंग ऑफ ऑर्चिड्स की IUCN लिस्टिंग। ठीक है, IUCN रेड लिस्टिंग यानी कि जी एक्सटेंट स्पीसीज होंदियां ने उन्हों की रेड लिस्टिंग की जाती होंगी है, ऑर्चिड्स की जा रही है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। नैक्सट है Russia has started production of S-300 long range surface to air missile for India। रशिया ने स्टार्ट किया है बनाना S-300 long range air to air missile। S-300 long range air to air missile किसी कंट्री द्वारा इंडिया को दिता जाएगा? रशिया तो। ठीक है, 5 हिस्सों च दी जाएगी। ये इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं रशिया। चाइना के डेडली करोना वायरस स्प्रैड हो रहा है। ठीक है, इस दे बारे ये भी याद रखना है। फस्ट केस इंडिया च देखा गया केरला के विच करोना वायरस का फस्ट स्टेट देखा गया। फस्ट केस कित्थे देखा गया? केरला के विच। मिजोरम स्टेट विल सैलीब्रेट इट्स बिगेस्ट फैसटिवल नेम चपचार कूथ फैसटिवल। चपचार कूथ फैसटिवल मिजोरम स्टेट द्वारा सैलीब्रेट किया जाता है। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि चपचार कूथ फैसटिवल किहड़ी स्टेट गौरमेंट द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मिजोरम द्वारा। नैक्सट है राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्होंने फ्लैग ऑफ की थी 51st K9 वज्र टी गन। 51st K9 वज्र टी गन इसनों फ्लैग ऑफ किया कितों? हजीरा गुजरात तो। हजीरा गुजरात दे विच की है? लार्सन एंड टर्बो आर्मर्ड सिस्टम कंपलैक्स। लार्सन एंड टर्बो आर्मड सिस्टम कंपलैक्स है हजीरा गुजरात के विच, उत्थों इसनों फ्लैग ऑफ किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। नैक्सट है व्योम मित्रा VYOM आएगा थे। व्योम मित्रा ए ह्यूमनॉइड विल सेंट बाय इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा व्योम मित्रा नूं सेंड किया जाएगा बिफोर सेंडिंग ह्यूमनस इन गगनयान प्रोग्राम। गगनयान प्रोग्राम की टेस्टिंग के लिए व्योम मित्रा नूं भेजा जाएगा। नैक्सट है इंडिया ने टेस्ट किया K4 मिसाइल। K4 मिसाइल का नाम याद रखने ने। K4 मिसाइल है जी इंडिया ने टेस्ट की है। 3500 किलोमीटर की रेंज है, न्यूक्लीयर कैपेबल है और लॉन्च की जा सकती है सबमैरीन तो भी ये लॉन्च की जा सकती है। कित्थे की टेस्ट? विजांग कोस्ट आंध्र प्रदेश के उत्ते यह टेस्टिंग की गई है K4 मिसाइल। नैक्सट है साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो SATE। साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया ग्रेटर नोएडा दिल्ली के विच। ग्रेटर नोएडा दिल्ली के विच इसनों ऑर्गेनाइज किया गया सी। इसका जो पब्लिसिटी कैंपेन सीगा ये किया गया सी टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा इसका पब्लिसिटी कैंपेन किया गया सी। ठीक है, और यह ऑर्गेनाइज की गई है कित्थे की है एक्सपो? ये की गई है ग्रेटर नोएडा दिल्ली के विच। अच्छा कि याद रखना डिफेंस एक्सपो कित्थे किया गया सी? लखनऊ उत्तर प्रदेश के विच किया जाएगा। 4th एडिशन ऑफ बक्सा बर्ड फैसटिवल कित्थे किया गया? बक्सा नैशनल पार्क के विच, और ये कित्थे है? वैस्ट बंगाल के विच। डायरैक्ट याद रखना है, मेनली याद रखना है एडिशन। किन्नवा एडिशन है? 4th एडिशन बक्सा बर्ड फैसटिवल का कित्थे किया गया? ओबवियस है बक्सा नैशनल पार्क के विच किया गया। और अगर आपको पता है कि बक्सा नैशनल पार्क कित्थे है तो आपको पता होगा कि यह कित्थे किया गया। कित्थे है? वैस्ट बंगाल के विच है। ठीक है, जिन्हें भी नैशनल पार्क्स ने मैं सारे तुहानूं करवा चुके हैं, याद होने चाहिए ने तुहाडे। नैक्सट है एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस किस दे उत्ते? सिविल एविएशन के उत्ते।
सिविल एविएशन के उत्ते एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन तो कॉन्फ्रेंस हैल्ड की गई, इसका की नाम है विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया 2020 कित्थे की जाएगी? हैदराबाद दे विच, हैदराबाद दे विच हैल्ड की गई है विंग्स इंडिया 2020। किरण रिजिजू यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कित्थों ने? अरुणाचल वेस्ट तो, अरुणाचल वेस्ट तो लोक सभा MP ने किरण रिजिजू। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया 23rd नैशनल यूथ फैसटिवल 23rd नैशनल यूथ फैसटिवल 2020 लखनऊ उत्तर प्रदेश के विच। नैक्सट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की किया सी? कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा सी, कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके। ठीक है, एक ही किया गया सी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका 150 यानी कि 150 साल की एनिवर्सरी मनाई गई सी कि उसनू बने नू 150 साल हो चुके हैं, इस लिए उसकी एनिवर्सरी मनाई गई सी, इस करके यह उसका नाम चेंज किया गया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, एक कमैमोरेटिव स्टैंप भी रिलीज़ की गई सी। ठीक है, उसकी 150 सालवीं खुशी के लिए एक कमैमोरेटिव स्टैंप भी रिलीज़ की गई सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, ये याद रखना है। नैक्सट है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हैल्ड किया गया आबू धाबी UAE दे विच, UAE दे विच वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हैल्ड किया गया सी। नितिन गडकरी द्वारा 31st रोड सेफ्टी कैंपेन किया गया सी नागपुर दे विच, 31st रोड सेफ्टी कैंपेन नू लॉन्च किया सी नितिन गडकरी ने नागपुर दे विच। ठीक है, नितिन गडकरी रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, लोक सभा MP ने नागपुर तो, MSME मिनिस्ट्री भी इन्होंने लवे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नैक्सट है रायसेना डायलॉग, रायसेना डायलॉग का 5th एडिशन हैल्ड किया गया सी न्यू दिल्ली दे विच, न्यू दिल्ली दे विच हैल्ड किया गया सी किस दे लई? फॉर डीलिंग मोस्ट चैलेंजिंग इशूज़ बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। यह किन्ना द्वारा किया जाता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन के नाल किया गया सी। सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने। ठीक है, ये याद रखने ने। सब तो ज़्यादा इस चर्चा की गई सी क्लाइमेट एमरजेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग मेनली इस चेंज की गई सी सब तो ज़्यादा चर्चा। नैक्सट है परीक्षा पे चर्चा 2020, परीक्षा पे चर्चा 2020 ये हैल्ड किया गया सी तलकोतरा स्टेडियम न्यू दिल्ली, तलकोतरा स्टेडियम न्यू दिल्ली के विच यह हैल्ड किया गया सी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नैक्सट है परशुराम कुंड मेला, परशुराम कुंड मेला कित्थे किया गया सी? अरुणाचल प्रदेश लोहित डिस्ट्रिक्ट दे विच, लोहित डिस्ट्रिक्ट दे विच यह हैल्ड किया गया सी अरुणाचल प्रदेश दे परशुराम कुंड मेला। नैक्सट है धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया सी पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजरवेशन मैगा कैंपेन, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया सी सक्षम कैंपेन। ठीक है, की नाम सीगा कैंपेन का? सक्षम। लॉन्च किया सी धर्मेंद्र प्रधान ने किस दे लई? फ्यूल कंजरवेशन के लिए, फ्यूल कंजरवेशन के लिए लॉन्च किया सी न्यू दिल्ली दे विच। सिंपली याद रखना न्यू दिल्ली दे विच सक्षम कैंपेन धर्मेंद्र प्रधान द्वारा फ्यूल कंजरवेशन के रिगार्डिंग। नैक्सट है बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ऑर्गेनाइज किया सी वर्ल्ड दी लॉन्गेस्ट अवेयरनेस ह्यूमन चेन, वर्ल्ड दी लॉन्गेस्ट अवेयरनेस ह्यूमन चेन नू ऑर्गेनाइज किया सी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा। मोर दैन 18,000 किलोमीटर दी सी अंडर जल जीवन हरियाली कैंपेन, जल जीवन हरियाली कैंपेन के अंडर यह अवेयरनेस चेन नू लॉन्च किया गया सी। ठीक है, नैक्सट है फर्स्ट एडिशन ऑफ कृषि मंथन, कृषि मंथन का फर्स्ट एडिशन हैल्ड किया गया सी गुजरात दे विच, गुजरात दे विच हैल्ड किया गया कृषि मंथन का फर्स्ट एडिशन। इंडियन रेलवेज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली दे विच इंडियन रेलवेज द्वारा ऑर्गेनाइज की गई रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट, रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट हैल्ड की गई न्यू दिल्ली दे विच इंडियन रेलवेज द्वारा। नैक्सट है 5th साइंस फिल्म फैसटिवल, 5th साइंस फिल्म फैसटिवल स्टार्ट किया गया गोवा दे विच, 5th साइंस फिल्म फैसटिवल कित्थे किया गया? गोवा दे विच स्टार्ट किया गया, गोवा दे पणजी दे विच। इस तो इलावा 50th एडिशन सीगा इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल भी हैल्ड किया गया सी गोवा दे विच। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी पूरे इंडिया दे विच 1 जून तो,
1 जून तो इंप्लीमेंट की जाएगी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, ये भी याद रखनी है। नैक्सट है इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स ने। इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स के सब तो पहले है अप्रूवल दिता यूनियन कैबिनेट ने मंगोलिया के नाल। मंगोलिया के नाल एग्रीमेंट किया है किस दे लई एक्सप्लोरेशन एंड यूजेस ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पजेस। आउटर स्पेस का यूज़ करने के लिए एग्रीमेंट किया है मंगोलिया के नाल इंडियन गवर्नमेंट ने। इस तो इलावा याद रखना है इंडियन गवर्नमेंट ने किया सीगा क्यूबा के नाल। क्यूबा के नाल भी एग्रीमेंट किया सी सोलर पार्क्स के रिगार्डिंग। सोलर पार्क्स के रिगार्डिंग एग्रीमेंट किया सी 75 मिलियन का। कितने मिलियन डॉलर्स का? 75 मिलियन डॉलर्स का। ठीक है। यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड, यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड इन्होंने अप्रूवल दिता है इन्ने डॉलर्स की फंडिंग के लिए नॉर्थ कोरिया नूं। यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड है जिहड़ा इसने फंडिंग के लिए अप्रूवल दी है नॉर्थ कोरिया नूं। ठीक है, ये अपने लिए क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया FATF फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रैड लिस्ट दे विच है। ठीक है, सॉरी ब्लैक लिस्ट दे विच है। फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट दे विच है। ठीक है, एक क्यों है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया नूं कहा जाता है कि यह टैररिज्म नूं सपोर्ट करता है। ठीक है, इस दे लई इसनूं इस टास्क फोर्स के अंडर रखा गया सी। ठीक है, और इसनूं फंडिंग मिलना इसकी बहुत वड्डी गल है, इसलिए अपने लिए इंपोर्टेंट बन जाता है, एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैक्सट है फेसबुक। फेसबुक ने एक्वायर किया है प्ले गीगा नूं। प्ले गीगा नूं जिहड़ी मैड्रिड बेस्ड क्लाउड गेमिंग कंपनी है। प्ले गीगा एक स्पेन की मैड्रिड जिहड़ी कैपिटल है, मैड्रिड बेस्ड क्लाउड गेमिंग कंपनी है, उसनूं एक्वायर किया है फेसबुक द्वारा। कितने मिलियन यूरोज के 70 मिलियन यूरोज के 70 मिलियन यूरोज के एग्रीमेंट किया गया। नैक्सट है उड़ीसा। उड़ीसा द्वारा याद रखना है अनाउंस की गई है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी समृद्धि। समृद्धि नाम की एक नवी एग्रीकल्चर पॉलिसी नूं की किया गया उड़ीसा द्वारा अनाउंस किया गया। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि समृद्धि स्कीम है जिहड़ी या फिर समृद्धि एग्रीकल्चर पॉलिसी है, यह किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट की है? यह है उड़ीसा की। ठीक है जी। नैक्सट है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने CEO ने किस दे? एमाजोन के। एमाजोन के CEO ने जेफ बेजोस इन्होंने अनाउंस किया सी 1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया के विच। इंडिया के विच 1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी जेफ बेजोस द्वारा। नैक्सट है इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया फिनलैंड के नाल। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने सना मैरीन। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना, रिसेंटली अपॉइंटेड ने। इंडिया ने MOU साइन किया फिनलैंड के नाल बायोलैटरल डिफेंस कॉरपोरेशन के लिए। बायोलैटरल डिफेंस कॉरपोरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया फिनलैंड के नाल। नैक्सट है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने लॉन्च की है यशस्विनी स्कीम। इतने ईरानी लिखना रह गया। स्मृति ईरानी ने लॉन्च की है यशस्विनी स्कीम किस दे लई? वूमेंस के लिए गोवा के विच। गोवा के विच की है वूमेंस के लिए, जिस दे विच की किया जाएगा 5 लाख तक का फ्री लोन दिता जाएगा, इंटरस्ट फ्री लोन दिता जाएगा 5 लाख तक का। किस दे लई? फॉर वूमेन सैल्फ बेस्ड ग्रुप्स। वूमेन सैल्फ बेस्ड ग्रुप्स नूं दिता जाएगा यह लोन। आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है अम्मा वोदी स्कीम। अम्मा वोदी स्कीम कितने द्वारा लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश द्वारा, जिस दे विच फाइनैंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी बिलो पॉवर्टी लाइन मदर्स के लिए, ताकि वह अपने चिल्ड्रनस नूं एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकन। ठीक है। नैक्सट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया 88 मिलियन का लोन एग्रीमेंट। 88 मिलियन डॉलर्स का लोन एग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड बैंक के नाल। वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करेगा 88 मिलियन डॉलर्स का इंडियन गवर्नमेंट नूं किस दे लई? असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन एग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड बैंक के नाल। अच्छा, अदानी ग्रुप है जिहड़ा ये की कर लेगा 1 जुलाई तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैनेजमेंट ले लेगा। ठीक है, टेक ओवर कर लेगा मैनेजमेंट नूं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इस तो इलावा याद रखना एयर इंडिया बारे। एयर इंडिया का 100% स्टेक सेल कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। लद्दाख ने साइन किया MOU डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नीति आयोग के नाल। नीति आयोग के नाल लद्दाख द्वारा MOU साइन किया गया। लद्दाख के लैफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए ने RK माथुर। याद रखने ने RK माथुर। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के
8 फरवरी ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 ਦੇ 7 दिन यानी कि हर टाइम, इसका मतलब होंगे हर टाइम इलैक्ट्रिसिटी और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। इलैक्ट्रिसिटी और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी दिल्ली के विच। नैक्सट है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने फर्स्ट स्टेट बनी है हु मेड अ पॉलिसी टू लीज एग्रीकल्चर लैंड। इतना थोड़ा कट गया, टू लीज एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड नू लीज ते प्रोवाइड करवाने वाली फर्स्ट स्टेट बनेगी उत्तराखंड। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है प्रैम्बल नू पढ़ाना स्कूल दे विच। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिहड़ा प्रैम्बल हुंदा है उसनू पढ़ाना इंपोर्टेंट बनाया है, किस दे विच स्कूल दे विच मैंडेटरी कर दिता है। किहड़ी गवर्नमेंट द्वारा? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश द्वारा। इस तो इलावा इंडिया ने 15 एग्रीमेंट साइन किए हैं किस दे नाल? ब्राज़ील दे नाल। 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ब्राज़ील ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਜੈਲ ਬੋਲਰਸੈਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਸੁਪਰ ਫੈਬ ਲੈਬ। ਸੁਪਰ ਫੈਬ ਲੈਬ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਕੇਰਲਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ फस्ट सुपर फैब लैब ਨੂੰ इनोग्रेट किया जाएगा केरला ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ कि MIT कंपनी है USA ਦੀ MIT कंपनी द्वारा इसनू बनाया गया, MIT कंपनी द्वारा। नैक्सट है नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ। नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਫਰੀਕਨ ਚੀਤਾਜ਼ ਨੂੰ। ਅਫਰੀਕਨ ਚੀਤਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਨ ਚੀਤਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਨਾਮੀਬੀਆ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਫਰੀਕਨ ਚੀਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਾ ਦੇਹੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਤਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦਾਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ ਅਫਰੀਕਨ ਚੀਤਾਜ਼। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਸਟ 2019 ਦੀ ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਅਕਸ਼य ਕੁਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਕੇਰਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਨੇ, ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਗ ਸਟੇਟਸ, ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਔਰ UTs। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਪਲੇਸ ਰਹੀ ਸੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਲਾਸਟ ਪਲੇਸ ਰਹੀ ਸੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। UTs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਡੀਚੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन ने? हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा MP ने उत्तर प्रदेश तो इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया सी स्वच्छता सुरक्षण लीग के रिजल्ट अनाउंस किए सी, जिस दे विच फर्स्ट एंड सैकेंड क्वार्टर दे विच इंदौर ने टॉप किया सी। ठीक है, फर्स्ट एंड सैकेंड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया सी ते इंदौर द्वारा दोनों क्वार्टर्स ਨੂੰ टॉप किया गया सी।
नेक्स्ट है इंडियाज रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपीटिटिव इंडेक्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपीटिटिव इंडेक्स जिहड़ा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ किया जाता है, कितना आया 34th रैंक आया, चेंज होके 65 तो डाउन आया है 34 तक, यानी कि इंप्रूव किया इंडिया ने ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपीटिटिव इंडेक्स दे विच। नैक्सट है कैनबरा सिटी ऑफ आस्ट्रेलिया बिकम्स वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी की रैंकिंग के अनुसार कैनबरा सिटी है जी आस्ट्रेलिया की वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बन गई सी। नैक्सट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बिकम्स 11th स्टेट टू लॉन्च माई गवर्नमेंट पोर्टल। माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च करने वाली फर्स्ट 11th स्टेट बनी सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नैक्सट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB द्वारा एक एनुअल क्राइम की रिपोर्ट रिलीज़ की गई है 2018 की, जिसनों टॉप किया उत्तर प्रदेश ने। यूपी द्वारा NCRB की रिपोर्ट न टॉप किया गया 2018 की रिलीज़ की गई है, पब्लिश की गई है 2018 की। नैक्सट है RK सिंह। RK सिंह कौन ने? राजकुमार सिंह। RK सिंह पावर मिनिस्टर ने, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने। ठीक है। आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। इन्होंने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 रिलीज़ किया है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 रिलीज़ किया है, किन्ना द्वारा यह बनाया गया? BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इस तो इलावा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEE अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है। इस द्वारा यह रिलीज़ किया गया तो टॉप किया गया इंडेक्स हरियाणा द्वारा, सैकेंड प्लेस पे करनाटका, थर्ड प्लेस पे केरला रहे ने। ठीक है। हरियाणा, करनाटका और केरला, ये याद रखने ने। नेक्स्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 रिलीज़ की गई है एक NGO द्वारा। प्रथम NGO का नाम याद रखना है, प्रथम NGO है। इस द्वारा एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 रिलीज़ की गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 15th एडिशन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 रिलीज़ की गई है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है। मेनली इस रिस्क सब तो ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज का रिस्क है। जोड़ा क्लाइमेट चेंज का रिस्क है वह सब तो ज़्यादा दस्या गया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा। नैक्सट है वेस्ट बंगाल बनी है 4th स्टेट, इस बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। 4th स्टेट बनी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने वाली। ठीक है जी। नैक्सट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश स्टेट ने टॉप किया फ्रूट प्रोडक्शन के। फ्रूट प्रोडक्शन 2018-19 के आंध्र प्रदेश द्वारा टॉप किया गया। ठीक है। अगर देखा जाए वैजीटेबल्स के किन्ने द्वारा टॉप किया गया? वेस्ट बंगाल द्वारा। वैजीटेबल प्रोडक्शन के टॉप किया गया वेस्ट बंगाल द्वारा और फ्रूट प्रोडक्शन के टॉप किया गया आंध्र प्रदेश द्वारा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे याद रखना है। इंडियन पासपोर्ट का रैंक कितना आया? 82 तो चेंज होके। ठीक है। इंडिया का जो पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग है उस इंडिया 2 प्लेसिस डाउन रहा, 84 आया 82 तो। ठीक है। इंडिया की कर सकता है 58 कंट्रीज वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी मिलती है इंडिया ने उसनों पासपोर्ट में। टॉप किया गया जापान द्वारा। जापान 191 कंट्रीज के लिए पावरफुल है जापान। ठीक है। सैकेंड प्लेस पर रहा सिंगापुर। सैकेंड प्लेस के सिंगापुर रहा, यानी कि वर्ल्ड का की होएगा पावरफुल पासपोर्ट केड़ा होएगा? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जापान। ठीक है। जापान का पासपोर्ट होएगा जोड़ा वर्ल्ड का पावरफुल पासपोर्ट कह सकते हैं आप। नैक्सट है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रैंकिंग्स इंडिया रैंक्स 6th इन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? 6th रैंक रहा है इंडिया का। नैक्सट है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल 2020। वेल्थ एंड लाइफस्टाइल 2020 मुंबई रैंक किया चीपेस्ट सिटी के। मुंबई ने चीपेस्ट सिटी है तो सब तो ज़्यादा कोस्टली सिटी कि है, एक्सपेंसिव सिटी कि है? हांगकॉन्ग। ठीक है। ये भी याद रखनी है। नैक्सट है इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 76th प्लेस इन 82 कंट्रीज। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा एक रैंकिंग रिलीज़ की गई है
ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2020 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ 76th ਔਰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ झरिया सिटी है झारखंड ਦੀ झरिया सिटी है ਇਹ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ झरिया ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਲਿੰਗੁਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਸਟ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਦਾ, ਐਮਬਸਟਰਡਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਐਮਬਸਟਰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੈंने ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ICJ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਗ ਸਿਟੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ 51 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ 41, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 10 ਪਲੇਸਿਸ ਡਾਊਨ ਆਇਆ 51 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 10 ਪਲੇਸਿਸ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਰਵੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ UK ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। UK ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਟੌਪ ਇਨ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 2020 ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 72 ਰੈਂਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ। ਟੈਲੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 72 ਹੈ। ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ USA ਔਰ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, USA ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 37 ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ। 10 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ 10 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, 3 ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 6 ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, UP ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹ। UP ਦੇ 6 ਨੇ, ਨਵਾਬਗੰਜ, ਪਰਵਤੀ ਆਗਰਾ, सम्मान, समसपुर, सांदी, सरसा नवार। ठीक है, याद रखने ने नवाबगंज, पर्वती आगरा, सम्मान, साजपुर, सांदी, सरसा नवार। ठीक है, पंजाब दी है केशवपुर मैनी कम्यूनिटी रिजर्व, केशवपुर मैनी कम्यूनिटी रिजर्व जी कितने गुरदासपुर दे विच है। ब्यास कम्यूनिटी रिजर्व, ब्यास कम्यूनिटी रिजर्व। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैन मेड है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैन मेड है इसलिए अपने लिए नाम ये थोड़ा जिहा अलग बनता है, याद रखना नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन्हां तिन्नां नूं एज ए रामसर साइट ऐड किया गया। इस तो इलावा पंजाब की 3 होर रामसर साइट्स ने, हरीके, कांजली और रोपड़। यानी कि इस टाइम टोटल पंजाब की कितनी रामसर साइट्स ने, 6 रामसर साइट्स ने, जिस दे विचों 3 पहली सीगियां हरीके, कांजली और रोपड़। हरीके, कांजली, रोपड़
केशवपुर मैनी, ब्यास कन्वेंशन रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये 6 ਦੇ 6 नाम याद रखने ने। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ द ਸੈਸ਼ਨ। गुड बाय।